الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ عید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے وہ 5 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبت رسول اللہ، یعنی سبت کہتے ہیں درخت کو اور جس کی بہت ساری شاخیں ہوں، پر اللہ پاک نے حضرت امام حسین کی نسل کو کتنی برکت دی اور پوری جو یوں کہیں کہ سید صاحبان جو ہے دنیا بھر میں وہ حسنی اور حسینی سید بنے، تو یہ ایسا درخت ہے جس کی شاخیں اللہ پاک نے کیسی عطا فرمائی اور دنیا بھر میں اللہ نے نبی پاک کی گویا نسل مبارک کو ان سے آگے بڑھایا۔ پھر ریحانۃ الرسول، پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا، یعنی دونوں کو، حضرت امام حسن امام حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار۔ پیارے آقا علیہ السلام ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ان ابن عباس من احبہما فقط احبنی ومن ابغضہما فقط ابغضنی، جس نے ان دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی، پیارے آقا فرماتے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی، ان سے دشمنی کی، وہ ایسا جیسا اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، میرے آقا علیہ السلام ان کو اپنے پھول کہا کرتے، اور روایتوں میں آتا ہے باقاعدہ پھولوں کی طرح انہیں اسمیل بھی کیا کرتے، انہیں سونگھا بھی کرتے، انہیں چوما بھی کرتے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے نبی پاک کے مبارک کاندھوں پہ سواری کی، اس لیے ان کو راکب دوش مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے نبی پاک کے کاندھے پر سواری کی۔ پیارے آقا سجدے میں جاتے تو یہ شہزادے نبی پاک کی مبارک کاندھے پر آ جاتے، نبی پاک سجدہ طویل فرما دیتے، نبی پاک انہیں چوما کرتے۔ ایک اور میں خوبصورت بات بتاؤں امام حسین، اندازہ ہو کہ وہ شخصیت کیسی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ دیکھیں ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو، ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، کسی بزرگ کو ڈھونڈتے ہیں، کسی عالم دین کو ڈھونڈتے ہیں کہ کان میں ذرا اذان بھی دے دیں اور کوئی گٹی دے دیں، تہنیک کہلاتی ہے وہ، کہ وہ کوئی چیز میٹھی چٹا دیں یا کھجور چبا کے چٹا دیں، شہد چٹا دیں، تاکہ ابتدا اچھی ہو، سٹارٹ اچھی ہو۔ اچھی باتیں کرنا چاہیے، سنت بھی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ لے کر آتے تھے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی سٹارٹ کیسے ہوئی کہ جب آپ پیدا ہوئے نا تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان امام حسین کے منہ میں دے دی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ناظرین ذرا سمجھیے کہ یعنی ان کی جو ابتدا ہے وہ نبی پاک کا لعاب دہن ہے۔ اچھا اذان دینے کے لیے ہم کسی بزرگ کو بلاتے ہیں، امام حسین کے کانوں میں اذان کس نے دی؟ اللہ کا نام لیا اور آواز تھی حبیب خدا کی، یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی کان میں اذان دی۔ محبت کا لیول دیکھیے کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کے مبارک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نبی پاک کی گود میں ہیں، اور گود میں دوسرے حصے پر امام حسین بیٹھے، جبریل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور دونوں میں سے ایک کو سلیکٹ کر لیں، اللہ دونوں میں سے ایک کو آپ سلیکٹ کر لیں، دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا اور ایک نے دنیا سے جانا ہے، اب آپ کی چوائس ہے۔ نبی پاک کو گویا یہ اختیار دیا گیا۔ اب ذرا غور کیجیے، اپنا بیٹا ہے حضرت ابراہیم نبی پاک کے اپنے صاحبزادے، آپ نے دل میں خیال فرمایا کہ اگر ابراہیم جاتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوگی، لیکن اگر حسین چلے جاتے ہیں تو میرے ساتھ ساتھ فاطمہ کو، مولا علی کو بھی تکلیف ہوگی، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ نبی پاک نے امام حسین کو گویا سلیکٹ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم جو نبی پاک کے اپنے صاحبزادے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہو گیا، اور پیارے آقا علیہ السلام امام حسین کو دیکھ کر کہا کرتے تھے یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جس کے لیے میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، میرے آقا کی ایسی والہانہ محبت ہو تو پھر ہم کیوں نہ اس گھرانے سے محبت کریں، ہم کیوں نہ اپنا سب کچھ امام حسین اور ان کی آل پر قربان کر دیں۔ یہ کیسا گھرانہ ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھئے نا، آپ کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، فرماتے ہیں ایسا کرم کا چمنستان ہے، ایسا کرم کا باغ ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اب امید ہے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ پھر بھی ہماری اوقات بھی نہیں ہے، ہماری اوقات کیا ہے کہ ان بڑی ہستیوں کا ہم ذکر کریں، نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں، نہ ہم ان کی شان بیان کر سکتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ دامن پھیلائے آج پروگرام کے لیے آ گئے ہیں کہ ان کا ذکر کریں گے، اچھوں کا ذکر کریں گے، بڑوں کا ذکر کریں گے، سرکاروں کا ذکر کریں گے، تو ہماری جھولیاں بھی بھرتی جائیں گی۔ حضرت کہتے ہیں نا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے۔ ہم قابل بھی نہیں ہیں، ہم شہدائے کربلا کا، امام حسین کا، گھرانہ مصطفیٰ کا ہم کیا ذکر کریں؟ بس ہم تو خیرات لینے آئے ہیں کہ ان کا ذکر کریں گے تو ہماری جھولیاں بھرتی جائیں گی۔ تو اب امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن، ابھی جب آپ کی ولادت ہوئی ہے نا، حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے دیکھا کہ امام حسین نبی پاک علیہ السلام کی گود میں ہیں، اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ پیارے آقا کی چشمان کرم سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے۔
उम्मुल फजल कहती है कि हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हुजूर ये हालत क्यों है, क्या वजह है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए, उन्होंने खबर फरमाई कि मेरी उम्मत इस फर्जंद को कत्ल करेगी। मैंने कहा क्या इसको, यानी इमाम हुसैन को? फरमाया हाँ, और मेरे पास उसके मक्तल की सुर्ख मट्टी भी लाए। यानी जिब्रील अमीन ने यह खबर इमाम हुसैन के बचपन में ही दे दी कि ये शहीद भी होंगे और जिस मकाम पर शहीद होंगे उसकी मट्टी भी प्यारे आका को दिखाई गई। एक और रिवायत सुनिए, अबू नईम ने निजी हदरमी से रिवायत की कि वो सफरे सिफ़ीन में हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, जो हजरत इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम है, कहते हैं उनके साथ थे। जब नैनवा के करीब पहुंचे जहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस है, तो मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने निदा की कि ए अबू अब्दुल्लाह, फुरात के किनारे ठहरो। मैंने अर्ज़ की किस लिए? फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन ने मुझे खबर दी है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला फुरात के किनारे शहीद किए जाएंगे, और मुझे वहां की एक मुश्त मट्टी भी दिखाई। इसी तरह मौला अली के हमरा एक और बुजुर्ग कहते हैं कि हम साथ थे, तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की जहां आज कब्र मुनव्वर है उसके मकाम पर पहुंचे। मौला अली ने पहले ही बयान कर दिया कि यहाँ इनके ऊंट बंधेंगे, यहाँ शौदा के ऊंट बंधेंगे, यहाँ इनके कजाबे रखे जाएंगे, यहाँ इनके खून बहेंगे, और जवानान आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मैदान में शहीद होंगे, आसमान और जमीन इन पर रोएंगे। मेरे प्यारे साहब, यहाँ चलिए मैं पहले तो जरा ये बताऊं कि फुरात नहर है बड़ी जबरदस्त, आज भी जो करबला जाते हैं उनको पता है, मगर फुरात का किनारा था, मगर उन जालिमों ने पानी ना पीने दिया और प्यासा ही उनको दुनिया से जाना पड़ा। वो मौलाना हसन रज़ा खान साहब का शेर है ना कि आप फरमाते हैं कि ए फुरात तू खाक में मिल जा, तुझे अहले बैत के नौजवानों की सूखी ज़बानें नजर ना आई। खुश्क हो जा, खाक हो गए, खाक में मिल जा फुरात, खुश्क हो जा, तुझ पर देख तो सूखी जुबाने अगले बैठ, खाक तुझ पर देख तो सूखी जुबाने अगले बैठ। अब नाज़रीन, यहाँ जो बात बड़ी अहम समझने वाली है, देखें नबी पाक अलैहिस्सलाम को बचपन से मालूम था कि इमाम हुसैन शहीद होंगे, मौला अली को मालूम है, बीबी फातिमा को मालूम है रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, और सहाबाए किराम की बड़ी जमात को, यानी मदीना मुनव्वरा भी मशहूर हो चुका था कि नवासे रसूल शहीद किए जाएंगे। अब बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, बड़ा अहम सवाल है कि जनाब नबी पाक अलैहिस्सलाम तो वो हैं जो इशारा करें तो चांद दो टुकड़े हो जाता है, आप दुआ फरमाएं तो डूबा सूरज पलट आता है, बड़े बड़े मसाइल, बड़े बड़े प्रॉब्लम लेकर सहाबा आते और नबी पाक हाथ उठाते, उनके मसाइल हल हो जाते, टूटी पिंडली लेकर आते, प्यारे आका जोड़ देते, निकली आंख लेकर आते, नबी पाक लगाते, वो आंख रोशन हो जाती। वो आका अलैहिस्सलाम जिनके पास इतना इख्तियार और मोहब्बत का आलम यह कि नबी पाक फरमाया हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं, तो जब पता चल गया कि उनको शहीद किया जाएगा, तो एक बार कभी नबी पाक ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मेरा नवासा है, मैं इसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह वो मुसीबत करबला के मैदान की इससे टाल दे, रब्बे करीम ये जो इम्तिहान होना है मेरे हुसैन पर वो इम्तिहान ना आए। अच्छा चले, नबी पाक ने दुआ नहीं की, मौला अली के तो जिगर का टुकड़ा थे ना, मौला अली नबी पाक के पास आ जाते। अच्छा माँ तो माँ होती है ना, खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कभी नबी पाक की बारगाह में आती कि हुजूर एक तरफ तो आप हुसैन से इतना प्यार करते हैं, हुजूर मेरा बेटा है, आप दुआ कर दें अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ये इम्तिहान टाल दे। आप सोचिए ये क्या बात थी, एवरीबडी नोज इट, सबको मालूम है, मगर कोई दुआ नहीं कर रहा इस इम्तिहान के टलने की, कोई इल्तिजा नहीं कर रहा। इसका मतलब पता क्या हुआ नाज़रीन, है कि सब लोग उस इम्तिहान के लिए तैयार थे, वो इमाम हुसैन की परवरिश कर रहे हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर इस इम्तिहान से गुजरे, अल्लाह की रजा के लिए अपना सर कटाए, शहादत का मर्तबा हासिल करे। ये कैसा जज्बा था, ये कैसी ट्रेनिंग थी, ये कैसी रब की रजा पर राजी रहना था। वो शायर कहते हैं ना, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। आप सोचिए कि ये यानी अब हम सब के लिए मैसेज क्या है। मैंने जैसे प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि हम वाकया करबला इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप बयान करें, मगर अपने लिए भी तो मैसेज लेना कि बचपन से पता है कि बेटा शहीद होगा, सब राजी हैं, हम पर छोटा सा इम्तिहान आ जाए, हम पर छोटी सी कोई प्रॉब्लम आ जाए, वावेला शिकवे शिकायत कंप्लेन, पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरा क्या कसूर है, मुझ पर ये आफत क्यों आई है, मैं तो ये भी करता हूं, मैं तो वो भी करता हूं, अपने गुनाह याद नहीं आते, ऐसे मौके पर अपनी नेकियां याद आती हैं जो पहले हमारी नेकियां नाकिस हैं। हम क्यों भूल जाते हैं इमाम हुसैन के इम्तिहान को, क्यों भूल जाते हैं हजरत अय्यूब के इम्तिहान को, क्यों भूल जाते हैं हजरत मूसा के इम्तिहान को, हजरत इब्राहिम को तो आग में डाला गया, अल्लाह के नबी हैं, ये तमाम वाकयात बता रहे हैं कि ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा हमसे घबराया नहीं करते। बल्कि अमीर अहले सुन्नत ने तो हमें एक और बहुत प्यारे अंदाज में समझाया है, खास तौर पे मुबल्लिगीन को, जो लोग दीन का काम करते हैं और जब थोड़ा सा काम करते हैं कोई साथ नहीं देता, दिल तोड़ बैठ जाते हैं, यार भाई नेकी का जमाना नहीं है, मैं तो चला था मस्जिद बनाने, मैं तो चला था लोगों को नेकी का काम करने, मेरा साथ ही किसी ने नहीं दिया, मेरा दिल तोड़ दिया, मैं तो नहीं करूंगा काम। नहीं जनाब, ये शुरू में मुश्किलें आती हैं। अमीर अहले सुन्नत फरमाते प्यारे मुबल्लिग, मामूली सी मुश्किल पे तू घबराता है, प्यारे मुबल्लिग मामूली सी मुश्किल पे तू घबराता है। एक हुसैन ने दीन की खातिर सारा घर कुर्बान किया,
समझे ना कि ये कुर्बानियां देकर दीन फैला है, तो हमारे साथ भी प्रॉब्लम्स आएंगे। बहुत खूबसूरत जुमला हमने अपने निगरानी शुरा से सुना, वो फरमाते हैं कि जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पे चलती है, मसाइल आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, ये हमें टेस्ट किया जाता है, ये हमें हमारा इम्तिहान लिया जाता है। तो करबला के इस वाक़े से खास तौर पे बचपन में, जो नबी पाक को इमाम हुसैन के बचपन में मालूम था ये शहीद होंगे, मगर देयर इज नो कंप्लेन, ये सबक दे रहा है हम सबको कि अगर आ जाए कोई मुश्किल, या अल्लाह हम तेरी रजा पर राजी है, अल्लाह हमें इस मुश्किल, दुआ करने में हर्ज नहीं है, लेकिन वावेला नहीं, शिकवा नहीं, कंप्लेन नहीं, सब लोगों को बताने का क्या फायदा है, मजा पता है क्या है? अच्छा, एक जुमला आपने सुना होगा, सब्र जमील, कहते हैं अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए, सब्र जमील पर अजर अजीम अता फरमाए। कभी किसी को पूछ ले सब्र जमील का माना क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, जी मदरी के नाज़रीन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सब्र जमील किसको कहते हैं? ये किसी जमील भाई का सब्र नहीं है, इसकी डेफिनेशन ये है, इसकी तारीफ ये है कि एक बंदा है जो पुरसुकून है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक उसके बराबर में बंदा वो बैठा है जो बड़ी तकलीफ में है, मगर दोनों को देखकर पता ना चले कौन मुश्किल में है, मेरा चेहरा भी ना बताए कि अंदर कितना दर्द है, अंदर कितनी तकलीफ है, क्योंकि मैं जानूं, मेरा रब जाने। हाँ, मजा ये, यानी सब्र इसका नाम है, सब्र जमील इसका नाम है कि किसी को पता ना चले। वो शायर कहते हैं ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। तो उम्मीद है कि मैं अल्लाह करे कि ये पैगाम लेने में हम कामयाब हो जाएं कि इम्तिहान आएंगे, मुश्किल आए, अभी भी हो सकता है किसी मुश्किल में हो, किसी परेशानी में, बीमारी में हो, कर्जे में हो, टेंशन में हो, करबला वालों को याद करें और अल्लाह की रजा पर राजी रहे। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इंशाअल्लाह उसकी रहमत साथ होगी, सब बेहतर हो जाएगा। अब चलते हैं नाज़रीन, अब ये वाकया, पहले तो आपने मकाम इमाम हुसैन सुन लिया, बचपन से ही सबको मालूम है, और इसी इम्तिहान की तैयारी हो रही। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला रजब 60 हिजरी में बमकाम दमिश्क में, यानी दमिश्क में आपका इंतकाल हुआ। आपके पास नबी पाक अलैहिस्सलाम के बड़े प्यारे तबरुकात थे। आपके पास प्यारे आका का इज़ार शरीफ, रदाई यानी चादर अक़दस थी, कमीज मुबारक था, मुँह मुबारक थे, नबी पाक के मुबारक नाखून थे, और आपने ये वसीयत की थी कि मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज़ार शरीफ, नबी पाक की चादर मुबारक और कमीज अक़दस में कफन दिया जाए, और मेरे उन आज़ा पर जिन पर सजदा किया जाता है, प्यारे आका के मुँह मुबारक और नाखून के तराशे रख दिए जाएं, और मुझे अरहमुर राहिमीन के रहम करम पर छोड़ दिया जाए। ये इश्क रसूल था हजरत अमीर मुआविया का, और खास तौर पे तबरुकात से जो उन्हें प्यार था। साहबी रसूल है, कातिब वही है, ये रहती दुनिया के लिए मैसेज है कि तबरुकात से सहाबा का भी प्यार था। अगर आज उम्मत का प्यार है तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन अब उनका बेटा कोरे बातिन यजीद पलीद, उस बदबख्त ने ये ना देखा कि मेरे वालिद तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के तबरुकात से भी प्यार कर रहे हैं, उनके नाखून मुबारक, उनके मुँह मुबारक को दिलो जान से अजीज रख रहे हैं, और उस जालिम ने जिगर गोशा बतूल, नबी पाक के सब जिस्म का हिस्सा है इमाम हुसैन, उनके साथ जुल्म किया, उनके साथ ज्यादती की। वो कहते हैं ना कि जिसके नसीब फिर जाए, जिसके अंदर बदबख्ती लिखी हुई हो, तो उससे बहुत बड़े बड़े गुनाह होते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक छोटी सी बात करके फिर मजीद आगे की तरफ चलूंगा कि हमेशा एक फॉर्मूला याद रखें कि कभी भी किसी के बच्चे की गलती की वजह से, किसी के बच्चे के बुरे अमल की वजह से उसके वालिद को बुरा भला या क्रिटिसाइज घर वालों को नहीं किया जाएगा। अगर ये फॉर्मूला बना लिया जाए तो फिर तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है ना, आपका एक बेटा यकीनन हाबील था जिसको कत्ल किया गया, मगर कत्ल करने वाला कौन था? काबील, वो भी तो आप ही का तो बेटा था। तो क्या माद अल्लाह काबील के कातिल होने की वजह से हजरत आदम को कोई बुरा कहेगा? वो तो ईमान से हाथ धो बैठेगा। बिल्कुल जिस तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, आपका एक बेटा इस मुसलमान नहीं था। तो अब पता ये चला, ये पूरी अगर तफसील में जाए तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी कि अल्लाह पाक की मर्जी है, हिदायत किसी को मिले किसी को ना मिले है, और ये बदबख्ती होती है किसी शख्स की, वो इतने बड़े घराने में भी पैदा होकर वो हिदायत का नूर हासिल नहीं कर सकता, मगर उसकी वजह से कभी भी किसी के औलाद की वजह से वालिद को बुरा भला नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ ये बात भी हमें याद रखनी है। अब क्या हुआ कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के विसाल के बाद यजीद बदबख्त जो है ये तख्त पर बैठ गया, और इसने कब्जा कर लिया, और इसने अपनी बेअत के लिए, उस जमाने में समझे ओथ लिया जाता था, हलफ लिया जाता था, या बेअत ली जाती थी कि भाई आप इस अमीरुल मोमिनीन के या इस सल्तनत के हाकिम की बेअत कर ले और इसको फॉलो करेंगे, इसके रूल्स रेगुलेशन को आप अपनाएंगे। तो हुआ ये कि सब तरफ उसने खतूत भेज दिए सारी सल्तनत में कि सब लोग यजीद की बेअत करें। अब ये एक जो समझे मैसेंजर जो था, खत लेकर ये मकतूब लेकर मदीना तैयबा एक शख्स पहुंचा और इमाम हुसैन की बारगाह में आया। उनको ये कहा गया था कि सबसे पहले आपने हजरत जुबैर साहबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला वो मदीने पाक में थे और इमाम हुसैन भी थे, कि इन दोनों की बेअत ले लोगे तो मामला सेटल डाउन हो जाएगा, फिर पूरे मदीने के लोग ले लेंगे। तो हजरत जुबैर ने भी मना कर दिया, और इमाम हुसैन के पास वो मकतूब पहुंचा तो आपने भी साफ इनकार कर दिया, क्योंकि आप जानते थे कि यजीद जो है वो बदबख्त है, वो शराबी है, वो बुरे अमाल करने वाला है, और वो जिसने कि मुसलमानों का रहनुमा बनने के काबिल ही नहीं है। अच्छा, इमाम हुसैन ये भी जानते थे कि अगर यजीद की बात मान ली जाती है फिर तो समझे कि उसने बड़े ऑफर्स भी दिए थे कि आपको इतने पैसे, तो इतनी मुराआत और इतनी सारी चीजें आपको दी जाएंगी और आपकी लाइफ बड़ी लग्जरी कर दी जाएगी। मगर ये तो नवासे रसूल थे ना, ये जानते थे कि बातिल के आगे अगर आज हमने सर झुका लिया, अगर आज हमने किसी फासिक को फाजिल को अपना अमीर बना लिया, तो फिर तो रहती दुनिया के लिए इस्लाम का निजाम बिगड़ जाएगा ना। आप जरा सोचिए, इमाम हुसैन खुद चाहते तो बड़ी लग्जरी लाइफ गुजार लेते, कंप्रोमाइज कर लेते कि ठीक है अब जैसा भी है चलने दो, लेकिन आप जानते थे कि अगर वो उस वक्त कंप्रोमाइज कर लेते तो फिर रहती दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन जाती कि आज भी लोग कहते हैं जब इमाम हुसैन कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो हम भी कंप्रोमाइज कर लें। आपने कंप्रोमाइज नहीं किया, आपने उसकी बात नहीं मानी, आपने अपना सर कटाना कबूल कर लिया,
मगर दीन के परचम को बुलंद कर गए। वो शायर कहते हैं ना, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आपने अपनी जान तो लुटा दी मगर इस्लाम को जिंदा कर गए। तो अब जब आपने उसकी बात नहीं मानी नाज़रीन, तो अब आप समझ गए कि अब यजीद ने बहुत जुल्म करना है, अब मुझ पर हमले करने। और सुभान अल्लाह, यहाँ उलमा कहते हैं कि एक और अदब भी था कि मैं मदीना पाक में हूँ और यहाँ कत्ल गारतगरी होगी, तो शहर मदीना में, मेरे आका के शहर में बदअमनी ना हो, यहाँ कत्ल गारतगरी ना हो, यहाँ पर जो है ना वो बेअदबी ना हो, तो बेहतर यही है कि मैं मदीना छोड़कर चला जाता। अब जरा सोचिए नाज़रीन, ये मदीना छोड़ने की बात पता है कौन कर रहा है? मैं और आप मदीने जाते ना और मदीने से वापस आए तो दिल पर कयामत टूट जाती है। कहते ना कि तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगे कि रूह बदन से निकल गई। एक आशिके रसूल की रूह बदन से निकल जाती है, तो जो पैदा ही मदीने में हुआ हो। जरा सोचें, जिंदगी के कमोबेश 50 साल आपने मदीने में गुजारे, मदीने की पैदाइश हो और फिर जिनके नाना जान का मजार वहां पर हो। आप सोचिए कि किस कदर मोहब्बत होगी मदीने से। और जब आप मदीना मुनव्वरा से निकले नाज़रीन, तो उसको जिस तरह अल्लाह अकबर जो उलमा ने और जो दास्तान रकम की है, अगर वो देखें तो अकल हैरान हो जाती है कि उस वक्त क्या हुआ था। अब ये शाबान की चौथी रात थी और उसके 3 पहर गुजर चुके हैं और नरम नरम हवा के झोंके सोने वालों को थपक थपक कर सुला रहे। सितारों के सुनहरे रंग में कुछ कुछ सफेदी जाहिर हो चली है। अंधेरी रात की तारीकी अपना दामन समेटना चाहती है। तमाम शहर में सन्नाटा है, न किसी बोलने वाले की आवाज कान तक पहुंचती है, न किसी चलने वाले की चहल पहल सुनाई देती है। शहर भर के दरवाजे बंद हैं। हाँ, खानदाने नबूवत के चश्मो चिराग इस वक्त जाग रहे हैं। सामान्य सफर दुरुस्त किया जा रहा है, जरूरत की चीजें बाहर निकाली गई हैं, सवारियां दरवाजों पर तैयार खड़ी हैं, पर्दे का इंतजाम हो चुका है। इधर इमाम के बेटे, भाई, भतीजे, घर वाले सवारियों पर सवार हो रहे हैं और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ ला रहे हैं। दिल की कैफियत है, आंखों में आंसू हैं। मेहराबों ने सर झुकाकर तस्लीम की, मीनारों ने खड़े होकर ताजीम दी। काफिला सालार के तशरीफ लाते ही अब नबी ज़ादों का काफिला मदीने से रवाना हो रहा है। ये वो मदीना है कि जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब मक्का पाक में सताया गया था, सहाबाए किराम के लिए जिंदगी मुश्किल कर दी गई थी, तो वहां से हिजरत करके सुकून के लिए, अमन के लिए, मोहब्बत के लिए तो मदीने आए थे। यानी मेरे आका पर जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, तो मेरे आका जब मदीने आए तो बनु नज्जार की बच्चियों ने नगमे गुनगुना कर इस्तकबाल किया था। मदीने के लोग मदीने के दरवाजों पर दीवाना वार आए थे और नबी पाक का इस्तकबाल हुआ था। और ये कुछ ही सालों में तकदीर का कैसा ये यूं समझिए कि सर्कल घुमा है कि अब नवासा रसूल को वही मदीना छोड़ना पड़ रहा है। नाज़रीन, अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता कि नवासा रसूल के दिल पर क्या गुजर रही थी। नाना जान से उन्होंने मज़ार पर अनवार पर जाकर क्या कुछ बातें की थी, क्या कुछ अर्ज किया, ये एक अलग दास्तान है। मगर अब ये 4 शाबानुल मुअज़्ज़म मदीना मुनव्वरा से ये काफिला जो है ये मक्के की तरफ रवाना हो रहा है। बहरहाल अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये शहजादे जो है मक्का पाक पहुंच जाते हैं। अब मक्का पाक में जिंदगी के कुछ दिन गुजारते हैं। इस दौरान नाज़रीन, कूफी जो हैं, जो कूफा में रहने वाले हैं, उन्होंने लेटर लिखना शुरू किए और वो लेटर बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में मकतूब आए। और उनका लेटर पता क्या था? वो हर बंदा ये कहता था कि हुजूर, हम यजीद की बैत नहीं करना चाहते, यजीद पलीद है, यजीद के अमाल दुरुस्त नहीं है, वो हमारा अमीर बनने के लायक नहीं है। या सैयदी, हम आपकी बैत करना चाहते हैं, आप नवासा रसूल हैं, आप खानदान रसूल के चश्मो चिराग हैं, आप हमारे पास आइए, हम आपकी बैत करेंगे। अब आपको बहुत सारे मकतूब आ गए। अब देखिए, हर जो लेवल होता है ना बड़ों का, उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। आपको ये एहसास हुआ कि अगर आज मैं कूफा जाकर इन लोगों का साथ नहीं देता और ये मेरी बैत नहीं करते, मजबूरन यजीद की बैत करनी पड़ गई, तो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, मौला हम तो यजीद की बैत नहीं करना चाहते थे, मगर इमाम हुसैन हमारे पास आए नहीं, तो हमें मजबूरन बैत करनी पड़ी। इमाम हुसैन को वो रंज था, वो एक फिक्र थी कि उन लोगों पर जो कैफियत है और जो मुझसे बैत लेना चाहते हैं। तो अब स्ट्रेटजी प्लान की गई। बदकिस्मती से जिनको तारीख पढ़ी नहीं है, जिन्होंने कुरान और हदीस पढ़ा नहीं है, जिन्होंने उलमाए हक की किताबें नहीं पढ़ी, तो वो अजीब अजीब बातें करते हैं कि जनाब वो एक जज्बाती फैसला था, यजीद से फौरन ही आपने जो वो लड़ाई करना शुरू कर दी, आप जनाब उसकी बात, अभी तो बैत का ऐलान ही हुआ था और आपने किया नहीं। इमाम हुसैन ने कमाल तदब्बुर का मुजाहरा किया, कमाल हिकमत अमली का मुजाहरा किया, कमाल दीनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि आप डायरेक्ट कूफा नहीं गए, बल्कि आपने मामलात को समझने के लिए अपने कजन, अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा कि आप वहां पर जाइए और वहां जाकर हालात को देखिए और फिर मुझे बताइए कि क्या करना है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील अपने दोनों साहबजादों को लेकर अब कूफा को रवाना होते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब इतनी सारी दरखास्तें थी तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील वहां रवाना हुए। और जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ? अच्छा, इमाम हुसैन ने एक लेटर भी दिया हज़रत मुस्लिम बिन अकील को, और वो लेटर क्या था कि तुमने मुझे रिक्वेस्ट की है, कूफा वालों से फरमाया कि तुम्हारी रिक्वेस्ट पर हम हजरत मुस्लिम को रवाना करते हैं, इनकी नुसरत, इनकी हिमायत, यानी इनको सपोर्ट करना तुम पर लाजिम है। हजरत मुस्लिम अपने 2 फर्जंद मोहम्मद और इब्राहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को भी साथ लेकर गए, जो इनके बड़े पसंदीदा बेटे थे। और अब हजरत मुस्लिम जब कूफा पहुंचे, आपने मुख्तार बिन अबी उबैद के घर पर क़याम फरमाया। अब जब जैसे ही लोगों को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन के नुमाइंदे आ गए हैं, हजरत मुस्लिम बिन अकील आ गए हैं, तो जोग दर जोग अश्दहाम जमा हो गया, रश जमा हो गया, और तकरीबन देखते ही देखते कि 12,000 लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर बैत कर ली। यानी गोया हजरत इमाम हुसैन के ये
नुमाइंदे थे, उनके बिहाफ पर ये बैत हो रही थी, तो उन्होंने फौरन बैत कर ली और जनाब बड़ा उनका वेलकम हुआ, बड़ा उनका इस्तकबाल हुआ। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि ये कूफा के लोग तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, एवरीबडी वांट टू वेलकम इमाम हुसैन, वो हज़रत इमाम हुसैन के इतने चाहने वाले हैं। तो आपने क्या किया कि हज़रत इमाम हुसैन को लेटर लिख दिया। अब जो टर्निंग पॉइंट है ना इस पूरे वाकया करबला का, वो जरा समझिएगा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने एक लेटर लिखा कि हुजूर यहाँ तो हालात बड़े साजगार हैं और 12,000 लोग तो मेरी बैत कर चुके हैं और आपकी आमद के बड़े मुश्ताक हैं और बहुत मोहब्बत आपसे करते हैं, तो आप जरूर तशरीफ लाइए ताकि ये लोग उस यजीद पलीद से जान उनकी छूटे और यहाँ पर इस्लाम की सही जो है वो तालीमात आम हो। तो सुभान अल्लाह, अब ये मकतूब रवाना कर दिया गया। याद रहे उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, टेलीफोन नहीं था, मकतूब लेकर लोग ट्रैवल करते थे, सख्त लेकर मैसेंजर को जाना पड़ता था और वो भी घोड़ों ऊँटों पर सफर था। तो बहरहाल एक मकतूब लिखकर उन्होंने रवाना कर दिया। अच्छा, आपने मकतूब रवाना कर दिया। अच्छा, उस वक्त जो कूफा के गवर्नर थे ना वो हजरत नोमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला साहबी रसूल थे। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारे मामलात को देखा तो कोई मुखालिफत नहीं की। वो जानते तो वो इमाम हुसैन से वो भी मोहब्बत करते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा कि देखो जो तुम काम कर रहे हो ना ये यजीद को पता चलेगा तो वो तुम्हारे बड़ा खिलाफ हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा कोई रोक टोक नहीं की। बिल्कुल एक लीनियन सा मामला रखा कि ठीक है वो जो मामला हो रहा था उसको होने दिया। मगर अहले कूफा में से कुछ बदबख्त भी तो थे ना, उन्होंने यजीद को खत लिखा कि नोमान बिन बशीर जो हैं साहबी रसूल रदी अल्लाह तआला, ये खामोश बैठे हुए हैं और मुस्लिम बिन अकील आ गए हैं रदी अल्लाह तआला और इमाम हुसैन के नाम पर बैत ले रहे हैं और ये मामला तुम्हारे खिलाफ जा रहा है। जैसे ही यजीद पलीद को ये पता चला कि ये तो पासा ही पलट जाएगा, तो अब यजीद ने क्या किया कि इब्ने ज़ियाद, ये इब्ने ज़ियाद जो है ये बसरा का उस वक्त वाली था, उसको कूफा का गवर्नर बनाया और फौरन का तुम वहां पहुंचो और हजरत नोमान बिन बशीर रदी अल्लाह तआला को सैक कर दिया, अपनी जिम्मेदारी से फारिग कर दिया कि अब आप गवर्नर नहीं है, अब कूफा के गवर्नर कौन, अब इब्ने ज़ियाद कूफा का गवर्नर होगा। अच्छा, इब्ने ज़ियाद ऐसा मक्कार था कि उसको ये तो पता चल गया था कि हजारों लोग इमाम हुसैन के चाहने वाले वहां मौजूद हैं और मैं जा रहा हूं उनको रोकने के लिए, उनके खिलाफ काम करने के लिए, तो मैं कूफा में दाखिल कैसे होऊंगा। तो उस बदबख्त ने प्लान क्या किया, उसने बसरा के हिजाजी लोग जो अरब के लोग होते ना उस वाला हुलिया अपनाया, रात को एंट्री दी। अच्छा, कूफा में ये इतला थी कि खत तो लिखा जा चुका है, किसी दिन भी इमाम हुसैन आ जाएंगे, तो कूफा के लोग रात को जमा होते थे, देखते थे कि कोई आने वाला है तो हम इस्तकबाल करें। तो देखा कि एक अरबी लिबास में शख्स आ रहा है, एक हिजाजी लिबास में शख्स आ रहा है, तो लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिया कि इमाम आ गए। वो समझे कि इमाम हुसैन आ गए, मगर ये था बदबख्त इब्ने ज़ियाद और ये छुपता छुपाता गवर्नर हाउस में दाखिल हो गया। जैसे ही गवर्नर हाउस में दाखिल हुआ तो लोगों को समझ आई कि ये तो इमाम हुसैन नहीं, ये तो इब्ने ज़ियाद है। अब उस इब्ने ज़ियाद बदबख्त ने नाज़रीन जो प्लान किया ना वो बड़ा खतरनाक प्लान था। अब जैसे ही इब्ने ज़ियाद अंदर गया और वो अपने गवर्नर हाउस में चला गया तो हजरत मुस्लिम बिन अकील उस वक्त हानी बिन उर्वा के मकान में इकामत कर रहे थे। उनकी रिहाइश एक शख्स था जिसका नाम हानी बिन उर्वा था, उसके घर में आप रहते थे। तो इब्ने ज़ियाद ने क्या किया कि हानी को अपने कारकुनान भेजे, फौज भेजी और पहले तो हानी को गिरफ्तार कर लिया, यानी जो होस्ट था जिसने पनाह दी थी या जिसने रिहाइश दी थी उसी को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, जैसे ही गिरफ्तार किया हजरत मुस्लिम को भी पता चल गया, तो आपने लोगों को कहा कि चलो चलते हैं गवर्नर हाउस। देखते ही देखते नाज़रीन 40,000 अफराद गवर्नर हाउस के गिर्द जमा हो गए। पूरे गवर्नर हाउस को, जो भी मकान था या जो भी इमारत थी, उसको घेरे में ले लिया और अब सिर्फ हजरत मुस्लिम बिन अकील के इशारे की देर थी। ये 40,000 का लश्कर अंदर जाता तो सब तहस नहस हो जाता और कंट्रोल कूफा का हजरत मुस्लिम बिन अकील को मिल जाता और मामला सॉर्ट आउट हो जाता। मगर हजरत मुस्लिम बिन अकील जंग करने नहीं गए थे और सुभान अल्लाह क्या तरबियत थी आपकी, आपने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया। अंदर उसको पता चल गया इब्ने ज़ियाद के बाहर तो 40,000 का लश्कर है, ये लोग तो अगर अंदर आएंगे तो तहस नहस कर देंगे और सारा मेरा मामला उलट पलट हो जाएगा। उस बदबख्त ने प्लान क्या किया कि उसने अपने फौजियों को भेजा और जो कूफा के बड़े पैसे वाले लोग थे, अमायदीन थे, कबीलों के सरदार थे, उन सबको गिरफ्तार किया और उनको गिरफ्तार करके कहा कि तुम इन लोगों को कहो कि हजरत मुस्लिम बिन अकील की जो है वो दोस्ती छोड़ दें, उनकी हिमायत छोड़ दें, वरना मैंने तुमको भी मार डालना है, तुम्हारे खानदान को भी उड़ा देना है। अच्छा, उन लोगों को इतना डराया कि छत पर वो लोग ऊपर आए। अब नीचे समझने जरा इमेजिन करें कि एक बड़ा सा महल है या बड़ा सा गवर्नर हाउस है, उसकी छत पर पूरे कूफा के बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े कबीलों के सरदार खड़े हैं और नीचे 40,000 लोगों का लश्कर है, हजरत मुस्लिम बिन अकील भी नीचे मौजूद है। उन लोगों ने ऊपर से आवाजें लगाना शुरू की और अपने खानदान वालों को कहा कि इनका साथ छोड़ दो वरना हम मारे जाएंगे, हम भी मारे जाएंगे, इब्ने ज़ियाद ने तुम्हें भी नहीं छोड़ना है, तुम्हारे भी घर तबाह हो जाएंगे, तुम हमें भी बचाओ और अपने आप को भी बचाओ। अब वो डराते गए। ऐसा कभी होता नहीं था कि जो हमने तो साहबा की सीरत में पढ़ा है कि नबी पाक के साथ शामिल हुए तो 313,000 के लश्कर से टकरा गए, अल्लाह की रहमत पर भरोसा था। मगर कूफियों का अंदाज देखें, जैसे ही उनको डर और खौफ दिलाया गया एक एक करके वो कम होते गए, कम होते गए, कम होते गए, डर डर के अपने घर जाते गए। आखिरकार जब मगरिब का वक्त हुआ तो इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला के पास सिर्फ 500 लोग रह गए। आउट ऑफ 40,000, 40,000 में से सिर्फ 500 लोग रह गए। और जब मगरिब की जमात की आपने इमामत की और जब आपने इमामत के बाद सलाम फेरा तो एक बंदा भी पीछे बाकी नहीं था। इमाम आली मकाम के नुमाइंदे इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु अकेले हैं, आपके 2 बच्चे हैं और आप अकेले हैं। कूफियों ने ऐसी बदअहदी की, कूफियों ने ऐसी बेवफाई की, सारी जिंदगी यूं समझे क़यामत तक उनकी इस बेवफाई पर, उनकी इस बदअहदी पर, उनका उस साथ न देने पर उन पर मलामत होती रहेगी, मलामत हो रही है। अब वो जो वक्त था हजरत मुस्लिम बिन अकील का, पर आप जरा गौर कीजिए। अच्छा, एक और जो अजीब बात किताबों में लिखी कि आपको अपनी फिक्र नहीं थी। अब उस वक्त भी आपकी आंखों में आंसू थे कि हाय मैंने इमाम हुसैन को खत लिख दिया, मैंने उन्हें बुला लिया है, जब मेरा इन्होंने ये हाल किया है तो मेरे इमाम आएंगे तो उनका क्या होगा, वो तो अपनी फैमिली के साथ आएंगे। अब जरा गौर करें कि ये कैसे पूरा जो है वो सफर हुआ होगा।
اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اب ہم یہاں اس واقعے کو تھوڑا سا بریک کرتے ہیں۔ اب آپ یوں سمجھ لیں کہ حضرت مسلم بن عقیل تنہا ہو گئے ہیں، ان کے بچے ہیں، اور امام حسین کو وہاں مکتوب یہ مل گیا کہ آپ نے چلنا ہے۔ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں اسی واقعے کو یہی سے لے کر آگے چلیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔